Hello everyone, this is Richa Mukherjee from the Logical Indian. Today we have with us medical fraternity and students across the states who are appearing for NEET and JEE exams, which are due in September. And we have a lot of students who have given the exams yesterday and today, and they would like to share their experience of how difficult it was for them to go for the exams and write the exams. We have with us Murli. Murli, I have heard that you were tested positive for COVID-19, and you will be appearing for NEET on September 13th. So, what are your apprehensions? How is your health? What are you feeling? And could you please explain to us what are your apprehensions about giving the exam? Yes, I have tested positive for COVID 12 days ago, and I've been in hospital for 8 days, and haven't prepared for exam. And I know that before the exam, the days are very crucial, but I haven't revised anything, so I can't give exam now. I think I'll attempt next year. My health is not too good. Still have been weakness and body pains. I've been under medication since 3 days, and I have to be in medication again for a week. Also, Murli, is there any provision for students like you who have recovered from COVID-19 or are tested from COVID-19? And what is the provision like? They are not able to give the exam, so is there any arrangement made by the government that they can give it next year or anything? No. Nothing. No official announcement has been done by this government. We have to attempt next year. No extra chance will be provided by the government. Now moving on, we have with us Manas. Manas is one of the 11 petitioners who had filed a petition in the Supreme Court protesting against the JEE and NEET exams. Now Manas, as you have told me earlier, your mother is a patient of diabetes and your father has high blood pressure issues. Now you have to sit for the NEET exam on September 13th. Now what kind of mental pressure are you going through, thinking that this might not only affect your health but also your parents' health? बहुत लोगों, मेरे तो ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है, बहुत लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो 70-80 ईयर के हैं, तो उनका ये कंसर्न है कि अगर वो इन्फेक्ट हो गए तो वो रिकवर कर सकते हैं खुद को, लेकिन उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी लाइफ को मतलब बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि हमें पता है, डॉक्टर विजय हमें बता सकते हैं कि वो एम्स दिल्ली में है कि मतलब किस एज से 60 ईयर्स से ज़्यादा एज के लोग कितने % रिस्क है उनको लाइफ में। तो हमें तो एक ये प्रॉब्लम है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन की है। बिहार के 16 जिले पूरी तरह से बाढ़ में डूबे हुए हैं। हमारा खुद का डिस्ट्रिक्ट भी जो सारण है वो भी बाढ़ में डूबा है। तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं दी गई है ट्रांसपोर्टेशन के लिए बिहार में। और अभी जो जेईई के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें जो हम लोगों ने डाटा कलेक्ट किया है एब्सेंटी को लेके, तो हमें जहाँ तक पता चला है मीडिया हाउसेस के हिसाब से कि राजस्थान में 41% एब्सेंटी रही कल के एग्जाम में, और गुजरात में 45% एब्सेंटी रही और आसाम में 50% एब्सेंटी रही। तो हमारा सरकार से ये सवाल है कि ये जो आधे बच्चे 40-50% बच्चे जिनका एग्जाम रह गया, उनके लिए क्या उनके पास कोई अरेंजमेंट्स है क्या? वो एग्जाम कैसे देंगे? या फिर उनका करियर खराब हो गया। बहुत लोगों का ये लास्ट अटेम्प्ट है, तो उनके लिए गवर्नमेंट को बिल्कुल अरेंजमेंट करना चाहिए। इसलिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं और गवर्नमेंट को करना भी पड़ेगा। सो मानस, आपने बोला कि आप फ्लड इफेक्टेड एरिया से बिलोंग करते हो, तो आपका सेंटर जो एग्जाम सेंटर है कितने पास है, मतलब डिस्टेंस क्या है आपका नियरेस्ट सेंटर से? मेरा होम टाउन सारण डिस्ट्रिक्ट में है, मेरा सेंटर पटना है जो यहाँ से 100 किलोमीटर है, और यहाँ से पटना जाने के लिए 2 रास्ते, वो फ्लड से अफेक्टेड है, वहाँ से जा नहीं सकते। दूसरा जो रास्ता है वहाँ फ्लड नहीं है, लेकिन वो रास्ता अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहाँ से ट्रैफिक जैम्स इतने लगते हैं। अभी लोग यहाँ मतलब 100 किलोमीटर जाने के लिए आपको 7 to 8 आवर्स साथ में लेके चलना होगा वहाँ पहुँचने के लिए। 2 डिस्ट्रिक्ट में सेंटर है, ये कैसे हो सकता है? कंसर्न है कि जितने भी गवर्नमेंट टाइम ले ले, 1-2 महीने 10 दिन जितना उनको लेना है, और सेंटर्स को बढ़ाए। हम लोग सेंटर्स को बढ़ा सकते हैं। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि इतने बड़े स्टेट में सिर्फ 2 जगहों पे सेंटर करें? अगर आप ट्रेन चला रहे हैं तो जितने भी स्टेट हैं जो फ्लड से अफेक्टेड है, गुजरात, वहाँ वो लोग अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑर्डर दें, उनको नियरेस्ट सेंटर उनके बनाया जाए घर के पास,
डिस्ट्रिक्ट्स में, और उनको खासकर उनको सुविधा मुहैया कराई जाए जिससे कि वो अपने घर से निकल पाएं और सेंटर तक पहुंच पाएं, उनके लिए कुछ की जाए. Moving on, we have with us Mr. Manish Gautam. Mr. Manish Gautam belongs to the medical faculty in Kota and is working relentlessly for the cause of the students. Now, Mr. Manish, you are working closely with the students even now, and nobody can understand their problems better than you. So, in your opinion, what is a viable solution to this, that students are still made to go to give their exams and the government is not doing enough for them? So according to you, what is a solution that can make their journey easier? Simple है कि it's a matter of equalization first of all. Equalization होना बहुत जरूरी है. सारे स्टेट जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस में इक्वल नहीं है, और ट्रांसपोर्ट में इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ सेंटर्स जो है उनमें भी इक्वल है, राइट. दूसरा ये कि जो एकेडमिक सेशन वाली बात हो रही है और जो चीजें बीच में आ रही है कि एकेडमिक सेशन जीरो हो जाएगा, तो ये रनिंग सेशन के लिए भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने ग्रुप में, स्टूडेंट्स के ग्रुप में एक मैसेज थ्रू किया था कि कितने बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही है और पोस्टिंग्स हो रही है जो एमबीबीएस पर्सन है, राइट. तो वो जो एकेडमिक सेशन जो रनिंग है वहीं अभी तक मतलब इतने लैप्सेस हैं, इतने लैकिंग्स हैं कि वहीं ज्यादा ध्यान देना चाहिए. जो न्यू एंट्रीज हैं वो अगर कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन हो भी जाती है तो बहुत बड़ा मैटर नहीं होता. मेरे लिए सारे स्टूडेंट्स इक्वल है, बिहार से हो, चाहे वो गुजरात से हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान से हो, मेरे बहुत पास से हो, मेरे रिलेटिव हो या कोई नॉन वन हो, राइट. तो वहाँ सब जगह इक्वलाइजेशन होना चाहिए. अब ट्रांसपोर्ट वाला इशू भी अपनी जगह है, कोविड वाला इशू भी है. हमारे साथ एक स्टूडेंट भी है जो खुद कोविड पेशेंट है, तो वहाँ इशू ज्यादा है. वो खुद भी डरा हुआ रहेगा और उसकी वजह से और लोग भी डरे होंगे. एग्जाम देने में ये सारी डिफिकल्टीज आएंगी. अरेंजमेंट जो है वो सबसे प्रॉपर होने चाहिए. अरेंजमेंट जब तक नहीं है, जब तक एग्जाम नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. अगर आपके पास अरेंजमेंट्स है तो फिर ये इतने एब्सेंटीज कैसे हैं? स्टूडेंट्स को ट्रस्ट क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा मैटर है. सर, एक और बात जो हम लोग के सामने आ रही है कि गवर्नमेंट बार बार यही बोल रहा है कि जो एकेडमिक ईयर है स्टूडेंट्स का वो वेस्ट हो जाएगा अगर इन साल उसने एग्जाम नहीं दिया. तो आपको क्या लगता है कि हाउ वैलिड इज दिस पॉइंट? नहीं, एकेडमिक ईयर किस रेस्पेक्ट में होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट है. एकेडमिक ईयर केवल फी स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में होता है कि आपका जो इकोनॉमिक सेशन है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो एक अलग मैटर है. अगर ये लर्निंग के बेसिस पे है तो लर्निंग जो रनिंग सेशन से पहले उनकी देखें. विदाउट पोस्टिंग एमबीबीएस की जो स्टडीज हैं वो कंप्लीट नहीं मानी जाएंगी. तो पोस्टिंग्स वाला जो बड़ा लैकिंग है उस पर ध्यान देना चाहिए. जो अभी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, इट जस्ट फॉर्मेलिटीज. मेरे पास रिटर्न में मैसेज हैं, बच्चों ने खुद एक्सेप्ट किया है कि सर जूम क्लासेस हो तो रही हैं लेकिन वो फॉर्मेलिटी है. तो एकेडमिक सेशन ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग अगर आप काउंट करते हैं, स्टडीज के बेसिस पे काउंट करते हैं, तो वही लैकिंग है. तो आप न्यू जो एंट्रीज हैं उनके लिए ये मत सोचिए. ये जो एकेडमिक सेशन काउंट कर रहे हैं ना, ये फीस स्ट्रक्चर के बेसिस पे काउंट कर रहे हैं, राइट. कि जो फीस आनी चाहिए थी, जिससे पूरे एक्सपेंसेस होते हैं मेडिकल कॉलेजेस के, वो फी इस टाइम पे आ जाना चाहिए था. अब तक एक दो इंस्टॉलमेंट्स आ जानी चाहिए थी, वो नहीं आई है. तो एटलीस्ट ऐसा ना हो कि जनवरी तक जीरो हो जाए वो. तो उससे पहले कलेक्शन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो सीए को आंसर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा इनके लिए. तो एकेडमिक सेशन इन द टर्म्स ऑफ मनी, इन द टर्म्स ऑफ फीस है ओनली. Now, talking about the loss of an academic year, we have with us a medical student. Nitansha, we would like to hear from you. How is the education system working amid COVID? Are classes being conducted? And how valid is the government stance that the students will lose an academic year if they do not sit for the exams? The academic year, how we are tackling is we are just sleeping while logging in our classes. Because we can't hear properly what the teacher is saying. We are even taking the practical classes online. And I'm failed to understand, we can't even understand the practical when we are in the batch of like 25 people. In the, in the guidance of 2 SRs or JRs, we can't even understand that much properly. And now we are, in that online setup. So the only thing which the majority of students are doing is on the correct time, we just, open our phones, we log into it and we just sleep or do our kind of work. अब होता ना, जब हम लोग नेक्स्ट ईयर में प्रोसीड हो जाते और हमारे जो जूनियर्स आने वाले हैं वो नहीं आते,
अकादमिक ईयर कब वेस्ट होता है? अगर हम लोग भी वहीं पे, हम लोग वी आर ऑन द सेम पोजीशन, हमारे भी सेंटर्स बाकी है, बिना सेंटर्स के प्रॉप्स नहीं हो सकते, दोनों चीजें बाकी है. So how the academic year is wasted, that is out of my mind actually. And कोविड की सिचुएशन से मैं एग्जाम देना, लाइक अगर मैं इस सिचुएशन पे होती, बिकॉज आई एम इम्यूनोसप्रेसेंट, सो मतलब ऐसा होता है ना कि घर वालों से परमिशन नहीं मिल पाती कभी एग्जाम देने की. फर्स्ट थिंग, लाइक आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ टू बी द ओनली वन, बिकॉज बहुत लोगों की भीड़ है, मुझ जैसे बहुत सारे लोग होंगे. सेकेंडली, मास्क में एग्जाम देना, लाइक आस्थमिक वालों का तो सोचो, दिल्ली जैसी स्टेट में कितने लोग आस्थमिक होते हैं, वो तो दुनिया जानती है. Moving on, we would talk to Dr. Vijay. Dr. Vijay is an intern at AIIMS in Delhi, and Dr. Vijay, you are practicing right now. And what do you think that what is going through the students who are appearing for the exams now? And in your view, you know, why is the government doing this and not listening to the students when the students and teachers are repeatedly saying that we need transport system, we need better safety measures, we are not able to travel, our children's health is at risk. So what do you think of this situation that the government has brought upon the students? अभी बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रेशर है इस बात का भी कि एग्जाम होगा नहीं होगा, तो इसी वजह से बहुत सारे बच्चों पे मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा. ऊपर से गवर्नमेंट ये कर रही है कि उन पे भी बहुत प्रेशर है, बहुत सारे एप्लीकेंट्स का, गार्जियन का, कि एग्जाम होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस में है कि देख कब होगा एग्जाम, कब होगा एग्जाम. इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रही है. लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये है कि बहुत सारे बच्चे दे ही नहीं पाएंगे एग्जाम, क्योंकि बिहार में, झारखंड में, यूपी में फ्लड्स हैं बहुत ज्यादा, उधर नॉर्दर्न पार्ट में बिहार में, और बिहार में बस 2 सेंटर है, पटना और गया, और पूरे ऐसे इतने सारे एप्लीकेंट्स के लिए बस 2 सेंटर है, तो उनको सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है बिहार में स्पेशली. ऊपर से एक गवर्नमेंट का ये है कहना कि एकेडमिक डिले हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि इतने लंबे एमबीबीएस प्रोफेशन 3 महीने का एकेडमिक डिले इतना कोई सिग्निफिकेंट नहीं है लाइफ रिस्किंग के ऊपर. डॉक्टर, आप एम्स में इंटर्नशिप कर रहे हैं. You are doing an internship in Delhi. Yes. Sir, वहाँ के जो medical students है, जो fraternity है, उसका what do you think their stance is? Because Delhi comparatively छोटा शहर है, interstate travel नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन वहाँ के students या parents का क्या concern है कि उनको भेजना है, नहीं भेजना है? हाँ, बोलिए. Registrar of our institute has stopped all the classes for UG undergraduates. So if there is no classes for undergraduates, तो ऐसे एग्जाम भी अभी के लिए नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट एंड ऑफ अक्टूबर तक पोस्टपोन कर देना चाहिए. बट आई हैव टॉक्ड to registrar for regarding this, but then he said that the counseling process, preparation for counseling process has already begun. So I guess government has pre-planned this. Despite intense urge of students to postpone the NEET exam, they're not listening to the students. I guess in my opinion there should be a phase 2 of NEET, in which like the affected areas where transport is difficult, the phase 2 of exam will be the best option, I guess, like we have done it previously for Odisha. Doctor, do you is there any arrangement being done by the Delhi government? Like, is there any transport system, any other facilities given to the students? No, I don't think so. The Delhi government hasn't provided anything for students. For the students, yes. Like my own brother is appearing for NEET this year, and he is staying with me, so he's going to give NEET in Delhi only. His center is in Dwarka. So I guess Delhi government hasn't provided any facilities. It's not a fight of the student and management. It's a fight of BJP and Congress. Yes, sir. Yeah. That's what we can see now. Moving on, we have Aman with us. Aman, you are an aspirant as well. You are studying for NEET. So
what is there any you have to appear for the exam? Where do you stay, Aman? Like which state do you belong to? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैं बिहार बेगूसराय का रहने वाला हूँ। बिहार के हो आप? तो आपका सेंटर कितने दूर है आपके घर से? मैम मेरा सेंटर मेरे घर से 140 किलोमीटर दूर है, पटना पर है मेरा सेंटर। तो आपने कुछ, आपके मम्मी पापा ने आपने कुछ ऐसा डिसाइड किया है कि आप कैसे ट्रैवल करने वाले हो? आप एग्जाम दोगे राइट? मतलब 13 को आपका एग्जाम है, तो आप कैसे ट्रैवल करने वाले हो? कुछ आपने सोचा है? 140 किलोमीटर ट्रैवल करना है। मैम जैसे कि मैं ड्रॉपर हूँ, तो मैं पिछले बार पेपर दिया था, तो हमारा पटना ही पड़ता है, क्योंकि जैसा कि सर ने बोला, मानस ने बोला, बिहार में बस 2 सेंटर है, पटना और गया। तो हम जनरली 1 डे वहाँ बिफोर जाते हैं, वहाँ पे कहीं होटल या लॉज लेके स्टे करते हैं और अगले दिन पेपर देना होता है हमें, क्योंकि वहाँ रिपोर्टिंग टाइम अराउंड 11 AM रहता है नीट वाले दिन, ठीक है, 2 बजे से पेपर रहता है। तो इस बार भी हमें वही प्लान था, लेकिन अब कोविड के कारण जो मेंटल स्टेट है सब लोगों का, खास करके बिहार में, जैसे कि हमारे अगल बगल बहुत सारे लोग हैं, बहुत को मैं जानता हूँ पर्सनली, जो कोविड पॉजिटिव हुए, ठीक है, उन्हें कोई किसी तरह की मेडिकल सुविधा नहीं मिली। जो यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, अगर वो कोविड पॉजिटिव होते हैं तो उनका सारा अरेंजमेंट उनके घर पे हो जाता है, या उनके लिए अलग से रिजर्व कोटा रखी गई है। पर जो जनरल लोग हैं, आम लोग, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि बहुत अंडर प्रिविलेज लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वैसे लोगों के लिए भी इलाज के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं है। और जहाँ तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात है, लोगों को उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है कि वहाँ पे कुछ होगा। सब लोग घर में अपना इलाज करा रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर सबको खुद खरीद के लाना पड़ता है, सब घर में ठीक हो रहे हैं। ऐसे स्टेट में अगर हमें, जैसे सर ने, पीयूष गोयल सर ने बोला कि ट्रेन का भी व्यवस्था कर दी गई है, तो मैम मेंटल स्टेट की तो पहले का बात कर रहे हैं। नीट जैसे एग्जाम देने के लिए, जो एक एग्जाम 3 डिसाइड कर देता है, पूरी लाइफ डिसाइड कर देता है किसी बच्चे को, वो फिजिकल स्टेट से ज़्यादा जरूरी है कि मेंटली लोग स्टेबल हो, क्योंकि कितना वास्ट एग्जाम है ये जितने भी लोग हमारे साथ शो में है वो सब जानते हैं। अब ऐसे केस में जब हम पड़ेगा पटना, तो अगल बगल हमारे बगल में कौन है, हम किसी से सटे ना, ट्रेन में जा रहे हैं तो हम किसी से मिले ना, या जैसे पर्सनल कार से भी मान लीजिए जैसे हम चले जाते हैं पटना, तो भी पटना में अराउंड हर सेंटर पे 500 से 600 विद्यार्थी रहने वाले हैं इस बार। 2 डिस्ट्रिक्ट में सेंटर है। पिछले साल तो वहाँ पे बस 61 सेंटर पे एग्जाम हुए थे, टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है। इस बार एनटीए ने बोला है 190 सेंटर के अराउंड है, तो भी मैम अराउंड 500 के स्टूडेंट हर सेंटर पे रहने वाले हैं, इतने ही पेरेंट्स होंगे। और बिहार का सेंटर मैम ऐसा नहीं है कि दिल्ली जैसे स्कूल हैं बड़े बड़े बिल्डिंग, या कहीं भी बाहर जैसे स्कूल है। यहाँ का स्कूल मैम बहुत छोटा रहता है मैम, ना ठीक से फैन चलता है, बहुत जगह धूप आती रहती है, वो भी ये बरसात के मौसम में 2 बजे हमें वो इतना मास्क लगा के एकदम पर्सपिरेशन टाइप का हो जाता है मैम। मेंटली हम लोग प्रिपेयर नहीं है, मेंटली सिर्फ हम ही लोग नहीं मैम, पूरा वर्ल्ड प्रिपेयर नहीं है। इनफैक्ट इंडिया का जीडीपी जिस तरह से गिरा है, तो गवर्नमेंट तो बोल रही है ड्यू टू कोरोना, तो जब इंडिया का जीडीपी गिर सकता है तो हमारी मेंटल स्टेट कैसी होगी? वो भी मैम, जैसे कि मानस भी मेरा दोस्त है, वो भी मैम बाहरी इलाके में रहता है, तो आप उससे पूछ सकते हैं मैम। जो भी बाढ़ इलाके में है उनके यहाँ 24 घंटे में 1 से 2 घंटे बिजली रहती है। और ये बात नहीं है कि कल बाढ़ आ गया है मैम, पिछले 1-1.5 महीने से है, आधा कमर तक पानी है उनके घर में। आप क्या उम्मीद करते हैं कि उनकी तैयारी भी वैसे ही होगी जैसे गुजरात में या मुंबई में रहने वाले मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग वालों बच्चों की होगी? तैयारी तो मैम सभी करते हैं। इस ऐसे अभी के केस में एग्जाम लेना, गवर्नमेंट पूरी तरह से जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। मैं मनीष सर को तो एक बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लगभग 1 महीने से देख रहा हूँ हर जगह कि कोटा के बहुत कम ही फैकल्टी ऐसे हैं जो बच्चों के लिए खड़े हुए हैं। मनीष सर उसमें से एक है, तो मैं सर को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ। वरना ज़्यादातर टीचर तो यही बोल रहे हैं कि बिहार के बच्चे पढ़ने वाले ही नहीं होते। शायद उन्हें ना IAS ऑफिसर का सिलेक्शन दिखाई देता है, ना कल्पना कुमारी नीट टॉपर दिखाई देती है। मुझे 2019 नीट में 490 मार्क्स थे, ठीक है ना। मुझे प्राइवेट मिल रहा था, सर जानते होंगे, लेकिन मैंने नहीं लिया। मेरा एक फ्रेंड है केशव माहेश्वरी, मैं नाम भी लेता हूँ, उसे 2019 नीट में 545 मार्क्स थे, पर हम लोगों को कॉलेज नहीं मिल पाया क्योंकि हम लोग का मैम कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, हम लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब ऐसे केस में मैम इस बार शायद एग्जाम में वो एफिशिएंसी ना रह पाए जो पिछली बार थी हमारी,
केशव का घर मैम मधेपुरा है, उसके पापा का आज ही ऑपरेशन हुआ है मैम। उसके घर में मैम एक कोविड पॉजिटिव भी निकल गई है मैम। वो बहुत परेशान है। बहुत अच्छी, जब हम लोग मार्च में आए थे यहाँ तो हम लोगों की तैयारी बहुत अच्छी थी, हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर थे, तब गवर्नमेंट ने पेपर नहीं कराया हमें, डोंट नो व्हाई। उसके बाद जैसे जैसे हमारा एनवायरनमेंट खराब होते चला गया, पढ़ाई के एनवायरनमेंट से दूर होते चले गए। और ऐसा बात नहीं सिर्फ पढ़ाई की मैम, आपने भी ये चीज़ फेस किया होगा, पूरे देश ने फेस किया कि जो भी लोग जिस सेक्टर में थे वो हर सेक्टर से डिटेल्ड हुए हैं। कुछ भी चीज़ वैसे प्लेटफॉर्म पे नहीं है पहले से, जैसे पहले होती थी। तो अब गवर्नमेंट ने एकदम जिद ठान लिया कि अभी पेपर चाहिए, कुछ भी न्यूज़ दे रहे हैं। और जहाँ तक मैम सर ने बोला, मनीष सर ने, कि अब कांग्रेस और बीजेपी हो गया, तो मैम जब हमने शुरुआत की थी तो मुझे याद है पहले 17, 18, 20 दिन तक ये सिर्फ स्टूडेंट की आवाज़ थी। पर मैम अपॉर्चुनिटी जब मिलेगी तो कोई भी फ़ायदा उठाएगा। जब अपोजिशन को लगा कि ये नहीं हो रहा है, ये बहुत बड़ा इशू बन चुका है, हमें आउट ऑफ इंडिया से सपोर्ट आने लगे, तो उन्होंने हमें ग्रैब कर लिया। क्योंकि हम एक दो नहीं थे, हम पूरे 20 लाख लोग थे, ज़्यादा ही थे मैम। तो उन्होंने अमन, अपॉर्चुनिटी बनाई। यस मैम। अमन, एक बात पूछना चाहती हूँ कि आपके जैसे और भी बहुत स्टूडेंट्स अपीयर करने वाले हैं, उनके घर के जो लोग हैं, मम्मी पापा है, भाई बहन है, दादा दादी है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है? मतलब उनको फियर है कि बिकॉज आपका घर 140 किलोमीटर है, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको रहना पड़ेगा, आपने बोला, तो वो एक डर है आपके, मतलब कैसा मेंटल स्थिति है आपके घर वालों का? आपका तो है ही, आपने बताया मुझे कि आपके घर वालों को क्या लग रहा है इसके बारे में? मैम कोई भी घर वाले ये थोड़ी चाहेंगे कि अपने बच्चे को मैं जान के मौत के मुंह में धकेल दूँ। और जहाँ तक घर वाले की बात है मैम, मेरी मम्मी अभी एक क्रोनिक डिजीज से रिकवर हुई है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्रोन है, वो कैंसर से रिकवर की है मैम, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोन स्थित कंडीशन है। लेकिन फिर भी वो फोर्स कर रही है कि तुम एग्ज़ाम देने जाओगी मैम, क्योंकि ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए नीट जैसा एग्ज़ाम बहुत बड़े सपने होते हैं। जैसे मैंने केशव की बात की, या मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं मैम, उसके पापा का तो आज ऑपरेशन हुआ है मैम, मैंने आपको बताया, लेकिन उसके पापा भी बोल रहे हैं कि तुम भी जाओगे पेपर देने। उसका घर सेंटर से 350 किलोमीटर दूर है। तो हमारे पेरेंट्स के मन में मैम बहुत ज़्यादा बसा हुआ है, कोई अभी नहीं चाहता है। लेकिन मैम जब गवर्नमेंट एग्जाम लेगी तो मैम किसी न किसी तरह करके, जैसे कि आज एक आर्टिकल भी छपा था कि 25,000 रुपये खर्च करके एक बच्चे कोलकाता में एग्जाम देने के लिए आया था। और मैम बिहार जैसे स्टेट में मैम वो जो ट्रेन चल जाए या कुछ भी चल जाए, किसी को मैम गवर्नमेंट पे यहाँ के भरोसा नहीं होता है। ये बात जब एग्जाम होगी यहाँ तो आप देखिएगा, पहले बता रहा हूँ, पटना में एग्जाम की क्या स्थिति होगी मैम, ये न्यूज में बात आएगी। बिल्कुल बिल्कुल अमन, कुछ भी कर लो, एक मेंटल स्टेट होता है किसी स्टूडेंट्स का एग्जाम देने का, अगर वो नहीं है तो फिर तुम कितनी भी मेहनत कर लो, तुम उतना परफॉर्म नहीं कर पाओगे जितना तुम्हें करना चाहिए था। आपने अभी जो कहा कि आपका रैंक इतना अच्छा था और अभी आपको डर लग रहा है कि आप उतना कर पाएंगे या नहीं, विच इज वेरी वेरी वैलिड। पिछले बार से भी कम नंबर कहीं ना आ जाए। Today we have with us JEE aspirant from Kerala who just gave her exams today. Alvia, we would like to know your experience while giving the exam today. Were the safety protocols followed? Was social distancing maintained? What were the steps taken by the government to ensure the safety of the students? And how difficult was it for you to write wearing gloves and masks? The SOPs were followed inside the exam hall, but not outside it. Like before the exam, all the parents and students crowded outside. They were trying to get their children inside. And once the exam started, there were SOPs followed for the seating arrangements. And one thing to be noticed is more than half the candidates were absent. So social distancing was followed, but after the exam, parents and children there was a massive crowd because the parents were trying to find their children and children were trying to find their parents, and everybody was discussing about how the exam went. So there was no social distancing after it. SOPs can be followed during the exam, but not before and after it. That is about the SOPs. There will be no physical frisking, but they did physical frisking, and also the invigilators were very close to us when they
bought the papers, signing and for giving instructions, very close to us, like less than a feet. They were close to our faces even. Alvia, I remember there was this video which became viral about this aspirant who said that writing in gloves, wearing gloves, it was immensely difficult and it led to a lot of sweating. So did you face that issue? Because, you have to wear gloves and you have to wear a mask while writing the exam. So we want to know that what was your experience? It is difficult to wear mask personally because I have some breathing problems. And also, we were very stressed. We were scared the person next to us is infected because, the thermal gun scan is not enough. There are so many asymptomatic coronavirus patients. Also, people take paracetamol to get after the thermal gun scan. So if there is a person sitting next to us who is COVID positive and we're sitting next to them without PPEs, we are very prone to get disease. If PPEs are not, if it's not essential, why are they wearing it inside the planes and why are doctors wearing it while treating patients? So it is because it is very easy to contract a disease from a coronavirus patient sitting only 1 or 2 feet apart from us. So we were very tense about it. Not me, everybody were tense about it. If there's something problem in the end, like if students are detected with COVID at the end of this thing, then who will be to blame? Because you cannot tell the students not to go when the Supreme Court has ruled that you have to give the exams, and the center will have its own say that academic year will be wasted. So all of you, what do you think that if anything goes wrong, that who is to be blamed? We will start with you, Manish sir. What do you think about this? डेफिनेटली ना, बच्चे इतने बड़ा सपना लेके आ रहे हैं, बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं और उनकी स्टार्टिंग ऐसी होगी कि वो कहीं पेशेंट ना बन जाए, राइट? वो एग्जाम की एंट्रेंस पे ही मतलब इतना डर के बैठे हैं। उनके दिमाग में एग्जाम तो चल ही रहा है और उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि यार बाहर कैसे होंगे, पेरेंट्स लोग ठीक से खड़े होंगे कि नहीं होंगे, या फिर उसको जो सफोकेशन फील हो रहा होगा वो उस वक्त किसी को नहीं कह पाएगा। मुझे पता है इससे पहले भी जो एग्जाम सेंटर्स हैं वहां जो बेसिक नीड्स होती है वही पूरे नहीं होते। मेरे को पता है, इट वाज बैक इन 2016, मेरे एक स्टूडेंट ने पूरे टाइम ऐसी जगह बैठ के एग्जाम दिया था जहां विंडो से पूरा का पूरा सनलाइट आ रहा था और आफ्टरनून का एग्जाम था और उसके कहने के बाद भी वहां कोई अरेंजमेंट नहीं था, उसका सेटिंग तक डिस्टर्ब नहीं किया, मतलब उसको चेंज नहीं किया गया। तो अब तो इतनी बड़ी सिचुएशन है कि बारिश भी आ सकती है, तो इनके पास कोई अरेंजमेंट्स नहीं। इट्स अ मैटर ऑफ अरेंजमेंट ओनली। जो सपने हैं वो टूटने नहीं चाहिए। मतलब यहाँ पर ये होना चाहिए कि हम जैसा जस्टिस में कहते हैं कि हमारे जो 10 गुनहगार हैं वो छूट जाएं, लेकिन किसी भी एक को मतलब बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा यहाँ पर भी होना चाहिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं लेकिन किसी सिचुएशन की वजह से वो एग्जाम तक नहीं पहुंच सकते, या फिर मेंटल स्टेट उनका अभी अलाउ नहीं कर रहा है, वो चीजों को रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, हेजिटेट हो रहे हैं। तो वहां पर ध्यान रखना चाहिए कि हमसे 1-2 बच्चे भी ना छूट जाए, राइट? क्योंकि बहुत अच्छे ब्रेन्स जो है ना वो यहीं से निकल कर आते हैं जिन रीजन में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा सारे आते हैं, लेकिन बहुत अच्छे ब्रेन्स यहाँ से भी आते हैं। हमारे साथ डॉक्टर विजय हैं, वो भी जो है वो भी बिहार से बिलोंग करते हैं और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं और उनको अभी सबसे ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। Your exam is approaching and you are worried, I'm sure, about your safety. So any message? Ma'am, I have so many things to say to government. पहली बात ये कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी बार बार ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि लाइफ मस्ट गो ऑन और एग्ज़ाम होने चाहिए। तो मैं उनको बता दूं कि मैं ही पिटिशनर था और मैंने पूरा ऑर्डर कॉपी पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट में कभी ये नहीं कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि एग्ज़ाम होने चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा, कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी, गवर्नमेंट की डिसीजन है, गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे के ये मत कीजिए कि एग्ज़ाम हो जाए। दूसरी बात, हम लोग ये कभी नहीं कह रहे हैं कि आप एग्ज़ाम 6 महीने के लिए टाल दीजिए, 2 महीने के लिए टाल दीजिए, 1 महीने के लिए टाल दीजिए। हम लोग सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप एग्ज़ाम 13 सितंबर को ले लीजिए। अगर आपके पास इतनी मशीनरी है, अगर आप 13 तक अरेंजमेंट करा सकते हैं, अगर मतलब आप में इतना दम है कि 13 तक आप सारी डिमांड्स हमारी मान ले, तो 13 को एग्जाम ले लीजिए। हम तो कह रहे हैं 13 को क्यों, 3 दिन पहले 10 को ले लीजिए। हम लोग एग्जाम देने को तैयार है।
अगर आपके पास मशीनरी है तो आप लगाइए ना, आप करिए अरेंजमेंट्स करिए, सारे डिस्ट्रिक्ट में सेंटर बनाइए। बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, हमें 38 डिस्ट्रिक्ट में सेंटर चाहिए। मैं क्यों जाऊँ 100 किलोमीटर एग्जाम देने इस फ्लड में, मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट में सेंटर देना। आप 3 दिन पहले एग्जाम ले लीजिए, आप कल ले लीजिए, हम लोग तैयार है देने के लिए। तो ये कहने से नहीं चलेगा कि नहीं बच्चे एग्जाम पोस्टपोन करवाना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं चाहते। बच्चे अरेंजमेंट चाहते हैं, बच्चे सेफ्टी चाहते हैं अपने और अपने पेरेंट्स की। तो हम लोग ये नहीं चाहते। और गवर्नमेंट से मैम कोई रिक्वेस्ट नहीं है, बहुत रिक्वेस्ट हो गया, 2 महीने से हाथ जोड़ रहे हैं गवर्नमेंट को। तो बहुत ट्रेंड चला लिया ट्विटर पे, निशांक जी पोस्टपोन जेईई नीट और DGNTA पोस्टपोन जेईई नीट। अब कोई रिक्वेस्ट नहीं होगा, अब इनको जो करना है करने दीजिए। ये लोग सुन नहीं रहे हैं। हमने कई सारे ट्रेंड चला लिए, कई सारे इंटरव्यू दे दिए, कई सारे डिबेट कर लिए, कई सारे लेटर्स लिख दिए, कई सारे पिटिशन फाइल कर दिए। आज भी एक पिटिशन फाइल किया है। तो ये लोग अब रिक्वेस्ट से नहीं मानेंगे। ये लोग अब इनके ऊपर डिपेंड है, ये ईगो में है अब कि वैसे भी मैम गवर्नमेंट जानी जाती है अपने डिसीजन वापस नहीं लेने के लिए। ये लोग अपने डिसीजन वापस नहीं लेंगे, ये ईगोइस्टिक गवर्नमेंट है, इनको करने दीजिए। आप देखिए अभी रेलवे और SSC की प्रोटेस्ट शुरू हो गई है। हमारी प्रोटेस्ट को देख के ये लोग, मैं तो ये समझता हूँ कि हम लोग 25 लाख हैं, ये लोग रेलवे SSC मिला के 2.5-3 करोड़ से ज्यादा है। ये लोग अभी तक चुप क्यों थे? इन्हें तो बहुत पहले हमसे आना चाहिए, लेकिन इन्हें हमसे सीख के किया है, अच्छी बात है। अब इस गवर्नमेंट को पता चलेगा कि ये स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं। ये 18, 19, 20 और 25 साल के बच्चे जो कर सकते हैं वो बड़े बड़े कोई नहीं कर सकता। तो इनसे कोई अब रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। आप देखिए SSC रेलवे के बच्चे भी अब रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो भी बहुत रिक्वेस्ट कर लिए। ये एकेडमिक्स ईयर की बात करते हैं, SSC CGL ने 3 साल से अपना रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है। मतलब एकेडमिक सेशन सिर्फ हमारा ही क्या, उनका नहीं होता है कोई एकेडमिक सेशन? वो भी तो स्टूडेंट है ना, उनको ज्वाइन कराइए, उनके रिजल्ट डिक्लेयर करिए। तो ये सब सर ने ठीक है, ये सब फीस और पैसे का चक्कर है, ये सब कोचिंग माफियाओं का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें कुछ भी लॉजिकल नहीं है इनके एकेडमिक सेशन में। Yes, absolutely. I would go on to Aman. Aman, do you have any message? You are going to appear for the exam, and any message? कुछ आप बोलना चाहते हैं गवर्नमेंट से, कुछ दरखास्त करना चाहते हैं, कुछ भी? मैं ये गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि वो अंडरटेकिंग करके दे दे। अभी तो 13 में टाइम है, गवर्नमेंट रातों रात डिसीजन लेती है, तो वो एक अंडरटेकिंग करके दे दे कि जिनका भी एग्जाम छूटेगा किसी भी कारण, उससे एक दूसरा मौका देंगे, ठीक है। और जिसे भी तबीयत कोविड पॉजिटिव निकलेंगे, उनका इलाज वो जैसे कि अपना मिनिस्टर्स इलाज अच्छे हॉस्पिटल में कराती है, उसका इलाज गवर्नमेंट कराएगी। वरना अगर ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि फिर वो गवर्नमेंट की कुर्सी छोड़ दें। ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। So with this we come to the end of the meeting and it was a pleasure talking to all of you. आपने अपना टाइम निकाला और लॉजिकल इंडियन से बात की एग्जाम्स के बीच में, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू।